Hello everyone, my name is Pankaj Agarwal. I am from Currency and Commodities Department, ICICI Securities. Today we have organized a very interesting training session on topic currency derivatives trading strategies. We all want to trade in currency derivatives, but at times we are fearful about it. Apparently it may look complex. So to help us in that, we have a very expert trainer in financial derivatives and in currency derivatives, Mr. Hitesh Sethia. Hitesh is empaneled with National Stock Exchange and has a vast experience working with different exchanges as a trader and as a trainer. He will help us in understanding on the topic. For the ease of the audience, we have divided the entire training session in 4 parts. Each training session part would be comprising one or more important topic. In the first part, we will cover important session on pre-market opening sentiments. Over to you, Hitesh. Thank you, Pankaj ji, and thank you to all the viewers. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हितेश सेठिया है and I have been well introduced by Pankaj ji. So आज जो 4 sessions plan out किए हैं, इसमें broadly I will be speaking about everything which is quite relevant from trading strategies perspective. और जब मैं trading strategies की बात करता हूँ, so I'm talking broadly in the sense of understanding futures, currency derivative futures, future related strategies for direct pairs, which are INR based pairs and non-INR based pairs. Then I'll be moving forward towards options and comprehensive option strategies and the related finer points related to it. So ये 4 parts हम लोग broadly discuss करेंगे और इसके साथ में वो सब चीज discuss करेंगे which are relevant from day-to-day perspective of trading in currency derivatives. So इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं and let me quickly do a screen sharing with my presentation. My presentation is prepared in such a way so that all important fine pointers are being mentioned out there. However, यहाँ पर मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें पॉइंट्स में दी है, मगर सब कुछ हम लोग मार्केट डेटा के ऊपर एक्सेल शीट के साथ में कैलकुलेट करेंगे और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कैसे बहुत सारी बचत की जा सकती है, हाउ यू कैन डू अ लॉट ऑफ शेयरिंग यूजिंग currency derivatives and specifically with reference to the new products. So let me start the screen sharing for my presentation and we will move forward to the next level with Excel and few more details. So before I start my discussion for first session, the disclaimer is out here. The viewpoint, belief, advice, statement, endorsements and opinion being expressed by me in this session, in the presentation or any recording which you are listening are those of speaker and it does not necessarily represent the opinion of National Stock Exchange of India Limited or ICICI Securities Limited. The entire discussion is made for awareness purpose with a clear objective of passing on the right kind and right level of knowledge to market participants. That's a disclaimer from my side to everyone. That's my quick and a little introduction. Pankaj ji has already given, so let me skip this slide per se. I personally believe that saving money is always equals to making money in the markets. जितना पैसा आप सेव करेंगे और ये पैसा जो आप सेव करते हैं, that is actually equivalent to making money from the markets. जितना ज्यादा सेविंग होगा उतना ज्यादा पैसा आपका बनते जाएगा. अब सेविंग्स हम लोग यूजुअली ऐसा सोचते हैं कि if we do less expenses, our savings will increase. In counter to that, मेरे हिसाब से what is more important out here is कि कुछ ऐसा किया जाए जहां पे हम ट्रेडिंग करें और साथ में सेविंग्स होती रहे, क्योंकि जितनी अच्छी सेविंग्स होगी उतने इन्वेस्टमेंट रोल आउट्स अच्छे से होंगे और जितने इन्वेस्टमेंट्स अच्छे से रोल आउट्स होंगे उतने रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी साथ में बनेंगे. बट सेविंग्स इज जस्ट नॉट अबाउट कि मैं पैसा बचा लूं, बट बहुत सारी जगह बाय सिलेक्टिंग अ राइट इंस्ट्रूमेंट भी मैं बहुत सारा पैसा बचा सकता हूं, सेविंग कर सकता हूं.
बोलने का तात्पर्य ये है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंडियन मार्केट्स में विद स्पेसिफिकली रेफरेंस टू करेंसी डेरिवेटिव्स, जहां पे मैं ट्रेडिंग करूंगा और उसके साथ मैं पैसा भी बचाऊंगा, एंड एवरी सिंगल पेनी व्हिच आई सेव बाय ट्रेडिंग आउट देयर दैट अकाउंट्स इन बेसिकली माय प्रॉफिट्स। सो इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ में मेरी एक्सेल शीट समझनी पड़ेगी, एंड लेट मी मूव टू माय एक्सेल शीट इन पर्टिकुलर. So a quick Excel sheet which is now in front of you. थोड़ा सा मैं स्क्रीन साइज इंक्रीज करता हूं. आई बिलीव शुड बी कंफर्टेबल विथ इवन माय फ्रेंड्स जो शायद मोबाइल से मुझको अभी देख रहे हैं. सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए मैं करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा हूं. सो सपोज I'm trading a futures contract, so there is no strike price in futures. So सब मान लीजिए मैंने 75 की प्राइस पे, मुझे पता है अभी 75 प्राइस नहीं चल रहा है, 72.75 चल रहा है, बट डेलिबरेटली समझने के लिए मैंने चीजें यहाँ पे राउंड फिगर में रखी है. तो 75 की प्राइस पे मान लीजिए मैं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट करता हूँ. एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको बताता जाता हूँ. सो बाय प्राइस जो है, इफ यू कैन जस्ट सी व्हाट आई हैव जस्ट हाईलाइटेड एंड सिलेक्टेड पर से, कि 75 की प्राइस में एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में सिलेक्ट करता हूँ, और मान लीजिए करेंसी डेरिवेटिव में जो एक टिक का मूवमेंट यूएसडी आईएनआर में हो रहा है विच इज 75.0025, एक टिक मूवमेंट होने पर वो बेच देता हूं. सिर्फ एक टिक मूवमेंट होने पर अगर मैं बेच देता हूं, अगर ये ट्रांजैक्शन में करता हूं, और ये जब ट्रांजैक्शन है मान लीजिए 100 लॉट्स के साथ में करता हूं, इफ आई एम डूइंग इट विथ 100 लॉट्स, 100 लॉट्स के साथ में 75 पे बाय करता हूं और 75.0025 पे सेल करता हूं, राइट. और मुझे पता है कि आप ये जानते हैं कि लॉट साइज करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में जो एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं, इट इज ऑफ 1000 यूएसडीज. जो पहली करेंसी होती है करेंसी पेयर में, उसका लॉट साइज बनता है, और जो दूसरी करेंसी होती है करेंसी पेयर में, उसका भाव आता है. सो आपको जब 75 भाव दिखता है, ये सेकेंड करेंसी का रेट होता है, राइट. यूएसडी इज डिनोमिनेटेड इन आईएनआर टर्म्स, रुपी में दिखता है, और लॉट साइज जब बनता है फ्यूचर्स में, वो पहली करेंसी का बनता है इन करेंसी पेयर. सो लॉट साइज $1000 का है. अगर मैं करता हूं तो मेरा जो टोटल टर्नओवर, खरीदना और बेचना, ये जो मेरा टोटल टर्नओवर हो रहा है, दिस इज दिस मच विच इज 15000250, 15000250, इतना टर्नओवर मेरा हो रहा है. इसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी, एक एक करके सारे चार्जेस समझेंगे हम लोग. स्टैम्प ड्यूटी ₹7.5 की मैं देता हूं, 7.5 रुपीज ऑन द एंटायर ट्रांजैक्शन. सेबी फीस जो मैं दे रहा हूं, that is again 7.5 rupee on the entire transaction, right. Stamp duty buying side पे लगती है, so appropriately it has been calculated, don't worry. SEBI fees मैंने total turnover पे calculate कर ली है. इसके अलावा जब मैं 100 lots trade करता हूँ exchange पे, तो 135 rupees I'm paying, 135 rupees I'm paying. As in what? As an exchange turnover charges. समझिएगा, खर्चा मैं पहले आपको बता रहा हूं. All expenses related to your trading, understanding them is extremely important. And then 18% GST on exchange turnover fees accounts to 24 rupees 30 paisa. That means मेरे जो जरूरी expenses हैं, statutory expenses हैं, और जो दूसरे खर्चे हैं, that accounts, अगर मैं 100 lots trade कर रहा हूं तो sorry, 174 rupees 30 paisa, 174 rupees 30 paisa accounts to all my statutory and necessary expenses. मान लीजिए इसके बाद मैं ब्रोकरेज भी इसमें इंक्लूड करता हूं, कंसीडरिंग द मार्केट रेफरेंस पॉइंट. ओके, कि मार्केट में रेफरेंस चल रहा है कि मेरा ये ट्रांजैक्शन का जो ब्रोकरेज है वो 20 रुपीज है. मैं सिंपल लेके चलता हूं कि 20 रुपीज मेरा ब्रोकरेज है 100 लॉट्स ट्रेड करने का. अगर ऐसा है तो इस पे जो जीएसटी बनेगा ब्रोकरेज पे, दैट विल बी 3.6 rupees. That accounts total 23.60. So statutory expenses और total brokerage on plus GST on brokerage अगर मैं इंक्लूड करता हूं तो that comes to 197.90. 197.90. मतलब let me use a simple language out here. लगभग 198 रुपीज मैं पे कर रहा हूं, और ये मैं सिर्फ रेफरेंस की तरह ब्रोकरेज ले रहा हूं, राइट. दैट बेसिकली डिफर्स, बट मैं सिर्फ एक रेफरेंस की तरह लेता हूं कि ब्रोकरेज इतना है और दूसरे चार्जेस इतने हैं.
याद रखिएगा 100 लॉट्स मैंने ट्रेड किए हैं और इसमें जो मैंने पैसा खर्च किया है ट्रेडिंग के ऊपर दैट इज अप्रोक्सीमेटली 198 रुपीज। अब समझते हैं कि ये फ्यूचर करने के बजाय अगर मैंने ऑप्शंस किया होता, अगर मैंने ऑप्शंस ट्रेड किया होता तो क्या होता था। सो क्विक 75 की स्ट्राइक प्राइस मैंने ली है, 10 पैसे का ऑप्शन खरीदा है, 10.25 पैसे में 0.1025 पे मैं सेल आउट कर देता हूं। 100 लॉट्स रखे हैं, क्वांटिटी 1000 यूएसडी जो है वो रखा हुआ है, टोटल टर्नओवर इज 2250 रुपीज, राइट। स्टैम्प ड्यूटी नंबर 1, जहां पे मैं 7.5 रुपीज पे कर रहा था, आउट हियर आई एम जस्ट पेइंग 1 पैसा, राइट, नंबर 1। जहां सेवी फी में 7.5 रुपीज पे कर रहा था, आउट हियर आई एम पेइंग 1 पैसा। थर्ड, जहां एक्सचेंज टर्नओवर फीस में 135 रुपीज पे कर रहा था, नाउ I am just paying 7 rupees 9 paisa. Let's say 7 rupees 10 paisa. 135 and 7.9, a big difference out here. The GST relatively again works out here. 18% on exchange turnover fees comes to 1.28 rupees. That accounts my statutory and necessary expenses as 8 rupees 38 paisa. 8 रुपए 38 पैसे के आसपास ये हो जाता है। ब्रोकरेज इस पे भी मैंने सेम ले ली है, कंसीडरिंग 100 लॉट्स का ब्रोकरेज इज 20 रुपीज फॉर मी। सो 20 रुपीज ब्रोकरेज मैंने ले ली है, यू हैव टू 20 रुपीज ब्रोकरेज मैंने यहाँ पे ले ली है, एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज 3.6 रुपीज, 3.6 रुपीज अगेन, राइट, दैट अकाउंट्स 23.6 रुपीज। अगर मैं ऑप्शंस में जब मैं ट्रेड करता हूं, 10 पैसे पे एक ऑप्शन खरीदता हूं और 10.25 पैसे पे मैं बेच देता हूं, एक ऑप्शन मतलब 100 लॉट्स का एक ट्रांजैक्शन में करता हूं, दैट कम्स टू माय टोटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग माय ब्रोकरेज एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कम्स टू सॉरी 31 रुपीज 98 पैसा, 32 रुपीज। अब सोचिए, जहां मैं 100 लॉट फ्यूचर्स के कर रहा हूं, 100 लॉट्स जब मैं फ्यूचर्स के कर रहा हूं, सो आई एम पेइंग 198 रुपीज, और जहां पर मैं ऑप्शंस 100 लॉट्स ट्रेड करता हूं, सेम भाव के बीच में बेच देता हूं, आउट देयर माय एक्सपेंसेस आर 31 रुपीज 98 पैसा, which is 32 rupees. Technically speaking, 32 by 198, I'm so sorry, 198 by 32. प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, इट्स गुड, लीनियर डेरिवेटिव है, बहुत अच्छा काम करता है, मैं मना नहीं करूंगा आप मत करिए ट्रेड, बट याद रखिए ऑप्शंस जो है उसमें आपके खर्चे बहुत कम, और सोचिए जितने खर्चे आपके कम रहेंगे उतना इफिशिएंट ट्रेडिंग वो होगा, नंबर 1। नंबर 2, जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस कम रहेगी, उसमें एक और एडवांटेज यह हो जाता है दैट योर कॉस्ट ऑफ एडवांटेज इज लेस देन योर क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट कैन हैपन। जितना कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम है उतना क्विक एंट्री और उतना क्विक एग्जिट हो जाएगा, नंबर 2, राइट। और नंबर 3 इज कि जितना पैसा मैं ऑप्शंस की ट्रेडिंग के साथ में बचा रहा हूं, 6 times आई एम सेविंग मोर देन फ्यूचर्स, दैट अकाउंट्स इन माय प्रॉफिट्स। मतलब जब कोई ट्रांजैक्शन में मुझको प्रॉफिट हो रहा है, सो माय नेट प्रॉफिट इंक्रीजेस, right, in comparison to futures। और मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन में लॉस हो रहा है, because loss can also be part out here, so अगर मेरे को लॉस हो रहा है एक कोई ट्रांजैक्शन में, then my loss will also be thin in comparison to the loss coming from the futures in options। क्यों? क्योंकि cost of transaction मेरी बहुत कम। That tells me very clearly one thing, that अगर मैं options currency derivatives में नहीं कर रहा हूं, then probably I'm missing a big opportunity out here of saving money, making my quick entries and quick exits per se। So let me request all of you, देखिए ऐसे बहुत, this is my personal opinion, कि ऐसे बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं इंडियन मार्केट्स में जो रिटेलर्स को ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, एंड one of the product is currency options। मैं खुद भी फ्यूचर्स करना बहुत पसंद करता हूं, ऑप्शंस तो बहुत फेवरेट है, बट ऑप्शंस is one of the product which personally I recommend you that please start focusing on options। बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा सेव करेगा। और जहां तक मैं आपको एक और चीज बोलता हूं कि ये पूरी 4 जो छोटे छोटे से प्रेजेंटेशंस हैं, आप जब इसमें सब चीज समझेंगे, then you will also understand the power of options। अलग दुनिया है पूरी, राइट। सो अलग दुनिया, पैसा भी बचाएंगे, इजी एंट्री एग्जिट भी करेंगे, और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाते जाएंगे।
ओके सो याद रखिएगा 6 टाइम्स ज्यादा पे कर रहे हैं जब आप फ्यूचर्स में हैं. स्टार्ट सेविंग, स्टार्ट ट्रेडिंग ऑप्शंस. सो इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा चेंज करिए, सेविंग्स बढ़ जाएगा आपका. लेट मी मूव बैक टू माय प्रेजेंटेशन विथ मोर डिटेल्स ऑन. Okay, so that's what I mean to say save money is equals to make money. Market में पैसा बचाने की habit, every single penny counts, and that's what my first slide is focused towards. Moving on to the next part that usually people don't understand because people in India have a lot of charm about equity markets. So equity markets के पीछे लोग चले जाते हैं और बहुत अच्छा भी है, मैं मना नहीं करूंगा. और equity markets को analyze करने के जो तरीके हैं, राइट, उसमें सबसे पहला एनालिसिस आता है फंडामेंटल एनालिसिस, और उसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस, और उसके बाद आता है सेंटिमेंटल एंड डेटा रीडिंग. सेंटिमेंटल एनालिसिस एंड डेटा रीडिंग. सो फंडामेंटल एनालिसिस में लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट ले लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ले लेते हैं, बैलेंस शीट ले लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, वैल्यूएशन मॉडल्स बनाते हैं और वैल्यू निकालते हैं. ओके, अब समझने वाली बात है कि वहां पर जब आप इक्विटीज में हैं तो आपके पास एक बैलेंस शीट है जिसको आप देखते हैं. बट when you are in currency derivatives you don't have a practically balance sheet available जिसको एनालाइज करेंगे, उसमें से करंट रेशियो निकाल लेंगे और you will be able to find out. No, this is far more bigger product, far more vibrant product. और इसीलिए यहां पर वो वाइब्रेंट या big time events plays a very vibrant role, very vibrant role. अभी ऐसे कौन से events हैं which are considered as the most important factors affecting exchange rate? Now affecting exchange rate doesn't mean I'm just talking about exchange rate related to USD INR. मैं बोल रहा हूं यहाँ पे that it is related to every single exchange rate which is available for you in terms of trading. 7 products we have, right? 4 direct INR based products and 3 non-INR products. So number one, political factor. We all understand any major political event has a lot of impact on currency derivative markets. If it is positive for markets, you will find rupee will start strengthening, and the other currency will start, not, I won't say weakening, but yes, the rupee will start strengthening. If it is good, if any major political event happens which is talking about a long-term growth for the country, then I'm pretty sure that you will find rupee will start strengthening. Any kind of uncertain events, you also need to track uncertain events. In any kind of uncertain events, could be tsunami, earthquake. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा uncertain events हो रहे हैं, then do remember, जहां पे भी uncertain event होता है, उस country की currency has a usual tendency of depreciation. So उस कंट्री की करेंसी बहुत जल्दी डेप्रिशिएट होती है. कोई भी कंट्री इफ इट इज वेरी मच प्रो टूवर्ड्स अनसर्टेन इवेंट्स, देन डेफिनेटली आपको देखने मिलेगा कि उस कंट्री की करेंसी काफी ज्यादा डेप्रिशिएट होने लगती है. इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जैसे फंडामेंटल फ्लोज, माफ करिएगा, फंडामेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग द इकोनॉमी. सो लेट मी ब्रीफ यू इन द टर्म्स. ऑल मेजर macroeconomic factors, macroeconomic fundamental factors of the country, okay, has a direct relationship with the exchange rates. अगर आपको लग रहा है इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, मार्क माय वर्ड्स, रूपी विल स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग. अगर आपको लग रहा है जीडीपी खराब हो जाएगा या जीडीपी नंबर्स बता रहे हैं कि मान लीजिए मार्केट खराब हो जाएगा, mark my words, rupee will start depreciating. So all those important factors from unemployment rate to the kind of fiscal deficit which comes up in the budget, every single macroeconomic factor has a direct linkage with the exchange rates. And the basic rule is anything which is good for country, anything which is good for economy, anything which is good for the system as a whole, mark my words, it will start strengthening rupee. And vice versa is also true. If something is not good, then mark my words, rupee will start depreciating. Now the same rule applies in non-INR based contracts, the cross currency contracts. मान लीजिए अगर मैं यूरो यूएसडी की बात करूं, अगर मैं यूरो यूएसडी की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे से ये प्रोडक्ट ट्रेड हो रहा है. क्या है? इट्स अ करेंसी पेयर. हो क्या रहा है उसमें? यू हैव euro as first currency and USD as second currency. दो currencies. Now currency, let me tell you the fundamental rule out here. Currency represents the fundamental strength of a country. So अगर US में कुछ अच्छा हो रहा है,
right? Okay, मान लीजिए वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता जा रहा है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ रहा है, any good macroeconomic factor pops up, right? Okay, the data is positive for US, you will find USD will start strengthening and the counter currency will start weakening person. So the rule is same, right? You don't trade a currency, number one, you trade a currency pair. Number two, currency pair represents the fundamental factors. If the fundamental factors are good in a specific country, you will find that country's currency will start strengthening. That's the fundamental rule. Yes, moving on to the next point, capital flow. Definitely the flow of capital should have to be continuous. In a country like India, a developing nation should always have both the sides of capital flow, FDIs and FIs capital flow. Both the things has to happen, and very clear flows should keep on happening. That again impacts the exchange rates a lot. More FIs and FDIs flows will strengthen Indian currency. Okay. Next is RBI intervention. In terms of RBI's intervention in managing the exchange rate, though we call it as a complete free flow of exchange rate happens, but RBI's intervention, indirect interventions also needs to be monitored. If it is positive, then you will find rupee will start strengthening, else you will find a depreciation. Moving on to the policy decisions. So we all understand two important policy decisions happens. Number one, monetary policy decisions, which is called as monetary policy meet, which is now bi-monthly. So every alternate, हर 2 महीने में आपको monetary policy meet दिखती है. So any change in the circulation of money, right, restricting it or increasing it has a direct impact. It has a direct impact on the exchange rates. Number two, in case of the second policy decision, which is budget, right? So दो policies होती है, एक monetary policy and the second one is fiscal policy. The fiscal policy is nothing but the budget. So if budget, right, is made for long-term growth, you will always find that exchange rate will keep appreciating. The domestic exchange rates, rupee will start strengthening. The classic example is which we have seen in last 15-20 days. Okay, we saw a strengthening INR per se. Why? Because the current budget, right, of 21 is poised toward the growth for long term. The complete focus of this budget was towards the infrastructure development and the overall development, I will say, for every single sector. Moving on to the next part, which is performance of other Asian currencies also to be monitored. Specifically, the Japanese currency to be, which is yen, Japanese yen, needs to be monitored. And last but not the least, but the most important factor, particularly not for long-term perspective, but for short-term perspective. छोटा सा trade करने के लिए, for a short duration trade, you should keep a bird's eye view on performance of equity markets. Performance of equity markets is directly linked to exchange rates. Directly linked to exchange rate. Now, आइए इसको समझते हैं. मान लीजिए कि equity market बढ़ रहा है, right? What it indicates that macroeconomic sentiments are positive. When macroeconomic sentiments are positive, then it is directly linked with the domestic currency appreciation, and you will always find rupee will start appreciating. In counter to that, when you see that the equity markets are not performing good, in that case, you will always find it is an indication that the overall economic situation is not progressive. It is not rightly on the progressive path. In that sense, अगर ऐसा है तो आप देखेंगे रुपया कमजोर होता हुआ आपको दिखेगा. And the rules are same. Let me tell you, when I was in Mauritius, तो वहां पे एक index है Semdex, which is the stock exchange of Mauritius का index है. Even Semdex और वहां की जो base currency pair trade होती है USD MUR, not in India, but just telling you, USD के against में Mauritian rupees, ये दोनों भी एक जैसा ही ट्रेड करते हैं. When I say एक जैसा means अगर equity market index ऊपर जाता है, increase होता है, so you will always find that Mauritian rupee will start strengthening. Most of the countries have the same formula, that the performance of equity markets directly impacts the short term impact will always be seen in terms that आपको domestic currency appreciate होती हुई दिखेगी. So in statistical terms, friends who are more mathematical and number oriented, let me tell them out here,
let me tell them, it's a negative correlation. When equity market goes up, the USD INR exchange rate comes down, right? And when the equity markets goes down, the USD INR exchange rate goes up, right? And do remember, this is not a long-term relationship, but for short-term. छोटे-छोटे से directional trade भी ना आप equity markets को देख के ले सकते हैं. We'll have a discussion on it in the next session. Moving on to the very, very important perspective कि सुबह 9 बजे जिस तरीके से the minute you open up your eyes and usually have a habit of checking what's happening in the global markets. What you basically do is you check Dow futures to check what is going to happen in Indian equity markets. Okay, और आप SGX Nifty track करते हैं that what is expected to happen in the morning hour of Nifty, right? जिस तरीके से आप देखते हैं ग्लोबल मार्केट स्कोर विद स्पेसिफिकली रेफरेंस टू SGX निफ्टी फ्यूचर्स, आप उसको देख के यहां पता करते हैं कि निफ्टी में क्या होने वाला है. वैसे ही हम लोग करेंसी में ये पता करते हैं कि किस भाव पे खुलेगा बाजार और कहां पर रहेगा सुबह. और इसको बोला गया that knowing the pre-opening sentiments, कि कल के भाव से, कल के एक्सचेंज रेट से आज एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. लेट अस अंडरस्टैंड. इक्विटी मार्केट्स को सुबह की डायरेक्शन समझने के लिए आप निफ्टी जो सिंगापुर में ट्रेड हो रहा है उसको देखते हैं. वैसे हम लोग दुबई गोल्ड एंड कमोडिटीज एक्सचेंज को देखते हैं. अब क्या है मैं आपको बताता हूं. DGCX इस एक्सचेंज का नाम है, दुबई गोल्ड एंड कमोडिटीज एक्सचेंज. इस एक्सचेंज पे जो सबसे लिक्विड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, जो सबसे लिक्विड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, ये रुपये का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है. सोचिए, हमारा रुपया विच इज नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल, वो बाहर के एक्सचेंज पे ट्रेड होता है. और एक एक्सचेंज ऐसा भी है दुनिया में जहां पे रुपया हमसे पहले ट्रेड होना शुरू हो जाता है. द वे SGX निफ्टी स्टार्ट्स ट्रेडिंग बिफोर इंडियन निफ्टी, वैसे ही इंडियन रुपी फ्यूचर्स जो है INR फ्यूचर्स जब सुबह 9 बजे खुलता है, इसके पहले दुबई मार्केट में रुपया ट्रेड होना शुरू हो जाता है. राइट, कौन से मार्केट पे? DGCX. अब देखिए, वहां पे ट्रेड करना अलाउड नहीं है. इंडियंस, रेसिडेंट्स इंडियंस आर नॉट अलाउड टू ट्रेड इन ओवरसीज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स. बट समझना और उससे क्लूज लेना इज एब्सोल्युटली ओके, इज एब्सोल्युटली फाइन. सो अब क्या करते हैं, मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप 5 मिनट में समझाता हूं. And you will be good to understand after this कि सुबह किस भाव पे रुपया खुल के सेटल होने वाला है. राइट, सो हम लोग क्या करेंगे, DGCX, इसका वेबसाइट भी मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में दिया है, dgcx.ae. लेट मी टेक यू आउट देयर ऑन देयर वेब पेज. ओके, याद रखिएगा, उनका मार्केट हमारे मार्केट के पहले सुबह 7:30 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से शुरू हो जाता है. हमारा मार्केट जब 5 बजे रुपया ट्रेड करना बंद कर देता है तो वो चालू रहते हैं, और रात को 1 बजे तक इंडिया टाइम के हिसाब से रात को 1 बजे तक DGCX चालू रखता है और उसमें रुपये में वहां पे ट्रेडिंग होती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सो मैं क्विकली उनकी साइट पे मूव ऑन करता हूं. आउट हियर, एंड दिस इज देयर पेज dgcx.ae. ओके, अब इसमें करना क्या है आपको. सो जैसे इक्विटी मार्केट्स ओपन होने के पहले आप SGX निफ्टी देखते हैं सुबह, वैसे ही इंडियन करेंसी मार्केट ओपन होने के पहले आपको इस साइट पे जाना है, नंबर 1. और देन यू हैव टू गो टू स्टेटिस्टिक्स. याद रखिएगा, ये होम पेज है. होम पेज पे फ्रॉम द राइट हैंड साइड द हेडर बार हैज स्टैटिस्टिक्स टैब. सो गो टू स्टैटिस्टिक्स. Just a moment, it is loading up the market watch. All right. All right. So you can just have a look to it. पहली चीज अगर आप देखें तो NSE पे जो मंथली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है किसका, USD INR का, वो 24 फरवरी को एक्सपायर होने वाला है. 24 फरवरी इज द मंथली एक्सपायरी. राइट, सेम टाइम पे सेम एक्सचेंज रेट पे, मतलब RBI रेफरेंस रेट विच इज नाउ FBI रेफरेंस रेट, सेम प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेड हो रहा है. आप देख सकते हैं ऑन द टॉप DINR विच इज DGCX INR कॉन्ट्रैक्ट. याद रखिएगा, ट्रेडिंग ऑन ओवरसीज एक्सचेंजेस इज नॉट अलाउड with specifically reference to margin trading I'm talking about. So 2021 02
एंड 24, मतलब सेम कॉन्ट्रैक्ट, सेम डे की एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट वहां भी ट्रेड हो रहा है। वहां जो ट्रेड हो रहा है उसके वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हैं, और उसका एलटीपी भी देख सकते हैं। बट ये एलटीपी थोड़ा सा अलग है। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेड जो हुआ है वो 137.72 पे हुआ है, 137.72 पे हुआ है। अब मान लीजिए सपोज ये चीज मैं करता हूं 8:55 पे, 8:55 इन द मॉर्निंग मैं ये करता हूं, और मान लीजिए ये 8:55 का स्क्रीन है, आपने उनका वेबसाइट पे गए, उसमें भाव देखा आपने, DINR सेम मंथ का कॉन्ट्रैक्ट 137.72 पे आप जाते हैं, राइट, उसका एलटीपी है। तो आपको क्या करना है, लेट मी टेक यू आउट हियर ऑन द एक्सेल शीट। ओके, ये 132.72 आपको एक जगह एक्सेल पे लिख लेना है, राइट। सो DINR इज एट 132.72, राइट। अब क्या है कि वहां पे डायरेक्ट रुपया ट्रेड नहीं होता है, उल्टा करके दे मेक एडजस्टमेंट्स एंड ऑल। सो किसी और दिन हम लोग समझेंगे, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू नो हाउ टू गेट द डेटा, राइट, राइट डेटा। तो आपको क्या करना है, इसको सीधा कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तो इट्स प्रीटी सिंपल, क्या करना है आपको, 10,000 डिवाइडेड बाय 132.72, 10,000 डिवाइडेड, आई एम सो सॉरी, 10,000 divided by 132.72. Let me go back and check. I'm so sorry, it is 137.72, right? Okay, 137.72 वहां पे चल रहा है, मान लीजिए 8:55 हो रहा है, और मुझको बहुत सिंपली क्या करना है, 10,000 डिवाइडेड बाय 137.72, राइट। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली चीज तो ये 100 रुपये में कितने सेंट्स आ जाएंगे, डॉलर का रेट नहीं है, 100 रुपये में कितने सेंट्स आ जाएंगे। तो पहला तो 100 रुपया एक चीज आता है, और सेंट्स जो $1 में 100 सेंट्स होते हैं, हम सब जानते हैं, तो उसका इंपैक्ट 100 से आ जाता है। सो 100 मल्टीप्लाइड विथ 100 कम्स टू 10,000, 10,000 बाय 137.72 ब्रिंग्स मी अ प्राइस 72.61। तो अब करना क्या है, बहुत सिंपल है। अगर ये रेट है, और मान लीजिए कल इंडियन मार्केट जब बंद हुए थे करेंसी के, तो वहां पे मान लीजिए भाव था 72.55 कल जब बंद हुआ था 5 बजे, तो 72.55 पे बंद हुआ था। तो आई एम प्रीटी श्योर आज जब रुपया ओपन होगा, सो मार्केट इट विल ओपन अप, राइट, एंड बी वेरी वेरी क्लोज to DGCX INR rates at 72.61. मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज जब ओपन होगा उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो 72.61 के आसपास जाने की रहेगी। बहुत बार ऐसा भी होता है that it opens up at 72.65 and from there then it starts coming down and starts settling down towards 72.61. सो याद रखिएगा, इंटरनेशनल प्राइस से आप ये पता कर सकते हो कि इंडिया में रुपया जो है वो किस भाव पे मॉर्निंग में सेटल होने की कोशिश करें। मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूं इट्स अ थंब रूल कि बिल्कुल 72.61 के आसपास जाएगा, नहीं, देयर इज नो थंब रूल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम विद क्वाइट हायर प्रोबेबिलिटीज आप लोग देखेंगे कि रुपया जो है वो सुबह ओपन होने के बाद में DGCX के रेट को मैच करने की कोशिश जरूर करता है, और बिल्कुल करता है, राइट। सो जिस तरीके से आप SGX निफ्टी आपके फेवरेट्स में ऐड करके रखते हैं, लेट मी रिक्वेस्ट यू, एक और काम आप कर सकते हैं, 8:55 पे USD INR जो दुबई में ट्रेड हो रहा है उसमें जाइए और उसको देखिए वो किस भाव में है 10th, और क्विक यू कैन जस्ट यूज अ कैलकुलेटर ऑन योर मोबाइल फोन से 10,000 बाय 137.72 डालिए और आपको पता चल जाएगा कि सुबह किस भाव के आसपास सेटल डाउन होने की कोशिश करेगा रुपया। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि 20-20 पैसे ऊपर या नीचे खुलता है जब अगले दिन माफ करिएगा पिछले दिन वॉलेटिलिटी ज्यादा रही है और लेट्स से डाउ जोन में कुछ इंपैक्ट आया है और उसके बाद इंडियन मार्केट्स में भी कुछ इंपैक्ट आया है, ओवरऑल ग्लोबल क्लूज बहुत सारे वॉलेटाइल रहे हैं, तो बहुत बार 20-25 पैसे का डायरेक्शनल क्लूज मिलते हैं कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे जाके सेटल होगा। और लेट मी रिक्वेस्ट यू कि कैसे करना है, नाउ कमिंग टू हाउ टू इंप्लीमेंट इट फॉर नेक्स्ट 5 डेज। आपको हर दिन 850 पे माफ करिएगा 855 पे जाके DGCX पे देखना है क्या भाव है, एंड आई एम श्योर जब आप देखेंगे तो आप अगले उसके बाद 9 बजे जब हमारा मार्केट खुलता है तो
रुक जाइए, पहले समझिए। आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि वो रेट के पास में आके रुकता है बाजार। उसके बाद यू नीड टू स्टार्ट विथ स्मॉलर क्वांटिटीज टू टेक एन एडवांटेज। द वे यू टेक एन एडवांटेज इन इक्विटीज बाय लुकिंग टू एसजीएक्स निफ्टी, सेम राइट, आप सेम चीज यहां भी कर पाएंगे। एंड देन आई एम प्रीटी श्योर ओवर अ पीरियड ऑफ सम मोर डेज, लेट्स से 15-20 days, you will get quite a good proficiency in knowing कि किस जगह मॉर्निंग में मार्केट सेटल डाउन हो। कभी कभी वो 1-2 पैसे प्रीमियम, 1-2 पैसे डिस्काउंट रह जाता है, सो अंडर इट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल, राइट, ओके। बट लेट मी टेल यू, उस लेवल के पास में बिल्कुल आने की कोशिश करना है। सो just trying to relate things because most of you might be have a preference to trade in equities, so just trying to relate things out here. The good thing is you can even get morning clues कि किस डायरेक्शन में रुपया ओपन होगा। इट इज नॉट अबाउट दैट you will be clueless और 9 बजे 9:01 के बाद में आपको पता चला कि आप क्या ट्रेड करना है करके, या किस डायरेक्शन में मूव करेगा रुपया मॉर्निंग सेशन। So that's a quick and quite an easy method to track it. Over to you, Pankaj ji. Thank you, Vedesh. It was very knowledgeable and insightful session on the pre-market opening sentiments. And we are very hopeful that our viewers and our audience would have gained a lot from your conversation and views. So just for the information of the audience, in the next session, we'll be covering a few more important points like trading strategies, futures and options, cross INR trading strategy, directional spread trading. So in this session, we will take a pause and we will resume the next session. Thank you very much. Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.